what time was allocated to me. In the end, while concluding, all I would say is that there's a great deal happening in India. We want all of you to plan long-term investment. And I would also appeal to some of you, there was a time and an opportunity when there was a brain drain. We would like to reverse the brain drain. I would invite many of you to come back and participate in our technical ventures, bring more technology, so much so that I would even go to the extent of saying, come back and join the political mainstream, join public life, become administrators here, and make contribution to India's great success story. With these words, I'd like to wish you all the very best during the stay here, and you be in touch with us. Thank you, ladies and gentlemen. We'd like to welcome Mr. Joginder Singh, former director of the CBI and a very well-known author, to our function with a floral bouquet. Very warm welcome to you, sir. Ladies and gentlemen, I now have the distinguished privilege in saying a few words about Dr. Bishnu Narayan Singh, the Honourable former Governor of Tamil Nadu and the Northeastern states. He's also been the former Union Cabinet Minister during late Mrs. Indira Gandhi's cabinet. He was looking after urban development, and in fact all the wonderful highways that you see before during the Asian Games was under his jurisdiction at that time. Mr. Bishnu Narayan Singh, as you can see, is a very simple man, but he is a very accomplished man and a very distinguished statesman. He believes in simple living and high thinking, which is the Gandhian way of life. He is, I think his itinerary on a day is extremely busy. I think it's as busy as a Prime Minister of India because he's all over the place, within India and abroad. He goes for lectures and speeches and conferences. But the most important part is he's always here with us whenever we have our conferences. He is a person who's very important to us. He has been very fond of the family, the Harbhajan Singh family. He is a family member, we count on him. And I have the privilege to say that he had won the highest honor given to a foreign dignitary by the Russian president 2 years ago, the Order of Friendship. He is regarded and respected all over the world and within our country. Ladies and gentlemen, I present to you Dr. Bishnu Narayan Singh. The International President, Gauhar Nawab Sahab, my very esteemed friend, Dalbir Singh ji, another esteemed friend, Major Ved Prakash ji, Dr. Nitish Singh Gupta ji, Dr. Batra, and young and dynamic Secretary General Gurinder Singh ji, dear distinguished delegates and friends. Initially I will speak few lines in Hindi, and I will go through my written test, because we are product of public life, and since last 57 years I have been addressing people. Then it will become your habit, and when you have written a speech, you will be within that. You will know how much time it will take. Otherwise, all knowledgeable people are here. If I will take more time, then what about the international president? I will have to keep in mind. What about other friends? So, after speaking few lines in Hindi, because I feel कि आप सब लोग जब विदेशों में होते हैं, जो मेरा तजुर्बा है, वहाँ जब आपसे हिंदी में बातचीत करते हैं तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है. और गांधी जी ने भी कहा था, आफ्टर ऑल गांधी जी तो हमारे फादर ऑफ द नेशन है ना. तो गांधी जी 3 बात हमेशा कहते थे, इसलिए आप लोग याद रखिएगा चाहे दुनिया के किसी हिस्से में रहते हो, और आप उसकी हिफाजत करते हैं. मुझे मालूम, मैं जानता हूँ इस बात को, कि यू मस्ट रिस्पेक्ट योर मदर. अपनी माँ को बहुत इज्जत देना चाहिए. माँ के बिना अस्तित्व इंसान का कहाँ है ही नहीं. दूसरा वो कहते थे, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर मदर टंग. अपनी मातृभाषा को मत भूलना. उससे जो संबंध बनता है वो किसी भाषा में नहीं बन सकता. जो अपनापन आपको महसूस होगा देश के अंदर भी हो जाता है. अब एक हमारे सेन दादा, अगर एक बंगाल के हमारे भाई जब उनके साथ बात करने लगते हैं, ये लोग तुरंत बंगाली में बात करेंगे. उससे जो अपनापन होता है वो अपनी भाषा है और बहुत रिच भाषा है, हमें गर्व है उस बात का. उसी तरह एक बिहार का आदमी तो हम लोग तो भोजपुरी में भी बात करना शुरू कर देते हैं उस डायलेक्ट में, और नज़दीकीपन मालूम होता है. तो मातृभाषा को नहीं भूलना, गांधी जी ने कहा, और मातृभूमि को भी नहीं भूलना.
इसलिए नहीं भूलना कि ये भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, खास करके डॉक्टर जीबी जी और हमारे अपने मित्रों ने, कि इंदिरा गांधी और कावेरी जी ने खास करके, इंदिरा जी के भी कैबिनेट में था, इसको हम शुरू में कह देना चाहते हैं। में अंतरिक्ष यात्री थे और राकेश शर्मा थे, जिसको आजकल हम करीब करीब हर सेमिनार में बोलते हैं। राकेश शर्मा सबसे पहले एस्ट्रोनॉट अंग्रेजी में कहेंगे आप, वो अंतरिक्ष यात्री थे, हमारे स्पेस में गए थे। और हम लोग का इतिहास ये है, अमेरिका के भी हमारे भाई हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं इस सेमिनार में, इस फंक्शन में। सबसे अभी हाल में तो सुनीता विलियम गई थी ना अंतरिक्ष में, तो हमारे दिल्ली के स्कूल के बच्चों से उन्होंने बात किया अंतरिक्ष से। उस वक्त की बात है ये 80 के दशक में, जब हमारी इंदिरा जी मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वो थी, तो वैज्ञानिक लोग पहुंच के वहां, और हम पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी थे, संसदीय कार्य मंत्री भी, वर्क्स एंड हाउसिंग इत्यादि इत्यादि के अलावा। तो वो पहुंचे पार्लियामेंट के दफ्तर में, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में। तो इंदिरा जी ने मुझे भी बुलवाया। संसदीय कार्य मंत्री और प्रधानमंत्री में बड़ा रिश्ता निकट का हुआ करता है, रखना ही है। अगर संसद को सही चलना है तो, सरकार के काम काज सही ढंग से उसका संपादन होना है तो नेचुरली उन्होंने हमको बुलाया कि मिस्टर जी, ये तो वैज्ञानिक लोग आए हैं, तो क्यों नहीं हम लोग चलें। ये लोग चाहते हैं कि हम अंतरिक्ष में राकेश शर्मा है, उनसे हम बात कर लें। और जहाँ पार्लियामेंट है साउथ की तरफ जब जाएंगे तो विजय चौक आएगा, उससे जो आगे बढ़ेंगे वायु भवन है, वहीं ये इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया हुआ था। तो हम लोग गए वहाँ के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ जाने में तो अत्यंत खुशी की बात थी मुझको। हम गए वहाँ, और भी बड़ी कहानी है, लेकिन संक्षेप में ये है कि इंदिरा जी जब कुर्सी पर बैठी तो ये सारे वैज्ञानिक सोच रहे थे कि पूछेंगे सवाल क्या। तो इंदिरा गांधी ने जो सवाल पूछा, चूंकि इस देश की सबसे जिसके शरीर के खून के एक एक कतरे में भारत बसता था, वैसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सभी प्रधानमंत्री बहुत पैट्रियोटिक थे, लेकिन इंदिरा गांधी की बात मैं बता रहा हूं अभी। तो उन्होंने पूछा, राकेश ये बताओ कि तुमको अंतरिक्ष से भारतवर्ष कैसा दिखाई पड़ता है। तो राकेश ने कहा, मैडम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जितने पिक्चर आपके सामने रखे गए, दोनों तरह के रखे गए, क्योंकि डेमोक्रेसी है। हम सिर्फ अगर पॉजिटिव साइड बात करें, और जब जो डाउन, जिसका डाउन साइड हमारे दलबीर सिंह जी ने शब्द इस्तेमाल किया, अगर क्योंकि हमको भी स्पीच सुनने की आदत पड़ गई है। अब संसदीय कार्य मंत्री दलबीर सिंह जी आप लोग हो जाइएगा ना, और मेजर साहब, तो सुनने की आपको आदत पड़ जाएगी। उस मरदूत को बोलना कम है, लेकिन बैठ के सुनते ही रहना है, जैसे स्पीकर को, क्योंकि तो तोड़ जोड़ रहा है ना उसका काम सबको, जिसमें संसद में पक्ष विपक्ष सब मिलजुल के चले और कोई सरकारी काम में रुकावट न पैदा हो जाए। तो हमारा व्यक्ति अपने जो लोग, यही नहीं, और आप लोग तो इतने अच्छे वक्ता है, इतने योग्यता रखते हैं कि सुनना ही था, तो हम सुन रहे थे। तो डाउन सब मतलब निगेटिव साइड नहीं, डाउन सब। लेकिन यहाँ निगेटिविज्म का कुछ चीज चला अभी, इसलिए लंबा स्पीच मेरा न हो जाए, मैं भी कुछ पॉजिटिव साइड आपके सामने अंग्रेजी में ही रख देता हूँ। अंग्रेजी मैंने स्पीच लिखा है इसलिए कि रिकॉर्ड में रह जाएगा। संस्था के गुरिंदर सिंह जी ने ही, इनके पिताजी के वक्त से ये अध्यक्षता का, देश के अंदर अध्यक्षता का बोझ हमारे ऊपर रहता है। सारी चीज ये लोग करते हैं, लेकिन ये लोग में ये विशेषता है। अब हरभजन सिंह जी के बारे में तो कहा जा चुका, आपने देखा भी अभी उसका जो बना है डॉक्यूमेंट्री, उन्होंने जो बनाया, बहुत अच्छा काम किया। और उनके लिए जो कुछ कहा जाएगा वो कम होगा, आपको बताएं। उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन सबसे ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो लिगेसी है, उसको जिस खूबी के साथ, मैं अपनी बात सच बताऊं, हम गांधी लोग फ्रैंक भी बात करते हैं। उनके निधन के बाद एकाएक उनका निधन हो गया ना, उम्र तो नहीं था, लेकिन अब ये तो ईश्वरी लीला आदमी के हाथ में नहीं। लेकिन हमको खुद शक था कि हरभजन सिंह जी इस संस्था को जिस ऊंचाई पर ले गए हैं, क्या गुरिंदर सिंह जी और दीपक जी ले जाएंगे कि नहीं। मैं सही बात बता रहा हूं। लेकिन जिस विशेषता के साथ इन लोगों ने उस लिगेसी को कैरी किया और इस संस्था को आगे बढ़ाने में जिस तरह से कंट्रीब्यूशन इन लोगों का जारी है, हम निश्चित ये मानते हैं कि ये संस्था जिस तरह से हमेशा से उनके द्वारा दी गई ये संस्था, जिस तरह से भारत और हमारे जो अपने ही देश के भाई
PIOs, NRIs, सभी लोग जो विदेशों में रहते हैं उनके साथ जो संबंध बना है जिससे भारत की मजबूती बनती है, वो लोग और भी ऊंचाई पर ले जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इन लोगों को तो बहुत बधाई हम लोग को देना चाहिए। और माता जी और परिवार के सब सारे गाइडेंस में काम करते हैं। अभी माँ के बारे में गांधी जी की बात बताई ना, तो मेरे जैसा आदमी तो बड़ा खुश होगा, क्योंकि हम तो उसमें बिलीव करते हैं एकदम। आज भी अपने फ्लैट में जहाँ मैं रहता हूँ अपनी माता पिता का तस्वीर लगा हुआ है। हम आज के आदमी नहीं हैं, ये जान लीजिए। सर झुका के तभी निकलता हूँ, ये हमारा संस्कार है इस देश का। तो माता जी बैठी, माता जी के गाइडेंस में काम करना। आजकल थोड़ा बहुत वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में भी आ रहा है, आपको बताते हैं, लेकिन इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि वो टिकने वाला नहीं। सो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, जहाँ कहीं कहीं अखबारों में पढ़ता हूँ तो एब्रेशंस तो होगा ही, कोई समाज में परफेक्शन नहीं हो सकता। जहाँ ये देखता हूँ कि लड़के ने अपने पिताजी को निकाल दिया घर से, ये दिल्ली में है, दिल्ली की कहानी है, दूसरी जगह की नहीं, आपको बताऊँ। और एक भी आदमी इसको हमको हमारा खंडन नहीं करेंगे, जोगेंद्र सिंह जी सही। कहीं पढ़ता हूँ कि माता जी को भी निकाल दिया। वे लीजिए, किस तरह किस पुत्र पैदा हुए, इस पर आश्चर्य होता है। भारत में तो सबको आश्चर्य होता ही है, समझे कि नहीं। तो ये सब, लेकिन ये एवरेज है इंडिया का, ऐसा नहीं है। यहाँ तो अभी डीप रूटेड है अपने बुजुर्गों का। यहाँ तो अभी भी यही शेर कहा जाता है कि हो सके तो बुजुर्गों का, फादर माँ और पिता की तो बात ही अलग है, हो सके तो बुजुर्गों का एहतराम करना। हो सके तो बुजुर्गों का एहतराम करना मीन्स इज्जत करना। याद रखना, ये हमारा संस्कार है। याद रखना, जन्नत की कुंजी उन्हीं के हाथों में है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है ना, तो बस उसी कुंजी से तो पहुंचा, उन्हीं के आशीर्वाद से पहुंचेंगे। तो ये संस्कार बिल्कुल कायम है। अब हम ही यहाँ बैठे हैं तो ये लोग बड़ा ज्यादा आदर कर रहे हैं, पता नहीं हम उसके लायक हैं नहीं है, कोई नहीं सोचता। विषम नारायण ज्यादा उम्र के हैं तो भाई आदर तो करना ही करना। तो ये हमारा संस्कार है, इसको हम लोग को कायम करना चाहिए। और देखिए, बहुत सारी बातें कही जा चुकी है, उसको हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। और आप लोग बहुत इनलाइटेंड लोग हैं। और ये भी कहा जा चुका है कि इंडियन टैलेंट, अब दलबीर सिंह जी ने कोट किया कि हम लोग 40% शायद आप कहेंगे, या गुरेंद्र सिंह जी ने कोट किया कि हम लोग जो मैन पावर दुनिया में जो होगा, स्किल्ड मैन पावर, यहाँ से इंडियन लोग यहाँ से जाएंगे। चाहे वो ओबामा साहब भले कह दें कि हम जो है सो कौन रिसोर्स कहते हैं उसको, आउटसोर्स नहीं करेंगे, लेकिन बिना हमारे डॉक्टर का कहीं काम चल सकता है यूरोप में या अमेरिका में? मेरे डॉक्टर ही कहिए, एक दिन राष्ट्रपति भी वहां बनेगा। आप इसको लिख के रख लीजिए, अमेरिका में, ये पक्की बात। मामूली टैलेंट हमारे देश में है। अब इतनी बात कही गई, देखिए डेमोक्रेसी के जरिए ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हमको चाइना भी बुलाता है, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर बत्रा को मालूम है, चाइना भी बुलाता है। चाइना हमें बुलाया 2004 में मई महीने में, गुरेंद्र जी भी जानते हैं इस बात को। वहां पर एक संस्था है, उसका नाम है चाइनीज पीपुल्स एसोसिएशन विद फ्रेंडशिप फॉर फॉरेन कंट्रीज। एक ही ऑर्गेनाइजेशन उनका है। चेन होसो थे, शायद बदल गए, मैडम ली हो गई हैं शायद प्रेसिडेंट। कल ही चाइनीज एम्बेसडर मुझको बता रहा जो नया आया है, कल ही की बात है, नहीं तो हम नहीं जानते थे। हम जानते थे कि वही है अभी। तो वो संस्था उनकी थी, उनका गोल्डन जुबली था वहाँ। तो हम जाके देखे हैं। इंटेलेक्चुअल से हमारे प्रोफेसर अमेरिका वगैरह से भी आप लोग आए हुए हैं, सब लोग यूके, सब लोग बड़े बड़े जगहों से आए हुए हैं। वहाँ के इंटेलेक्चुअल से हम लोग से कह रहे थे, ये तो दूर का ढोल सुहावन सुने हैं ना, वो कहावत है, दूर का ढोल सुहावन। अलग से चाइना हो रहा है। हमारे प्रोफेसर साहब जो एक अमेरिका में है, उनकी वाइफ चाइनीज है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। हमारे इंडियंस के भी वाइफ बहुत सारे चाइना में मैरिड हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की में जो खुशबू है, आपको बताएं, जो फ्रेग्रेंस है, वो कहीं नहीं आ सकता है। डेमोक्रेसी ही दे सकता है। वो फ्रेग्रेंस इंडिया में इफरात है, जिसके वजह से दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और के वजह से आप रिस्पेक्ट पाते हैं एकदम। चाइनीज इकोनॉमी बढ़ रहा है, नो डाउट अबाउट इट, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वहाँ तो डिसिप्लिन है, सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, फाइल जल्दी जल्दी मूव होगा, ये तो होगा ही होगा। हमारे यहाँ भी मूव होता है, नहीं होता तो हम तो जमाने के आदमी है ना। एक नीडल पैदा यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता था। मेरी माता जी ने कहा कि ये आज़ादी की लड़ाई के वक्त की बात है, हम तो उस वक्त के आदमी भी हैं ना। मेरी माता जी ने कहा कि भाई कपड़ा स्टिच करना है, जाके एक नीडल खरीद के ले आओ।
हम खरीद के ले आए, उस पर भी मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ। बनाते हम कहाँ कुछ थे बताइए ना। हमारा रॉ मटेरियल सब मैनचेस्टर में जाना है। और नवाब साहब ने ठीक उल्टा कर दिया जाके, हमारे जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट दिखा दिया यूके वालों को कि टैलेंट वाइज, हुनर वाइज, योग्यता वाइज रूल तो हम पर हमारे देश में जरूर कियो, तुम्हारे पर भी रूल करने की हम लोग क्षमता रखते हैं। ये इन्होंने दिखा दिया। 18 होटल्स इन लंदन, मैं आपको बताऊं, हमारे गौहर नवाब साहब। और हम जब जाते हैं तो हम वहीं रुकते ही है ना। अब अपने आदमी क्या उससे आनंद, अंग्रेजों को होटल में थोड़ी मिल रहा है, सवाल ही नहीं है। डॉक्टर बत्रा उधर बैठे हैं, देख लीजिए। ये अनदर फैक्टर है जर्मनी में। अब इन्हीं के सामने वो कहानी उसका भी कहा कि मैं समाप्त करने वाला हूं, इसको भी नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो आप बाकी कोई आदमी नहीं बोल पाएंगे। हम वैसे पिछड़े हुए आदमी इस देश के हैं कि मेरे पास न तो आप ईमेल पाएंगे, सारा गुरिंदर जी के ईमेल में काम चल जाएगा, या और मित्रों के ईमेल पर मेरा काम चल जाता है। ये नहीं है ईमेल, बिलीव करेंगे आप। सब ईमेल वाले लेकिन बुलाते हैं मुझको। ये हमारी खूबी नहीं, भारत की खूबी पर जा रहा हूं मैं। यहाँ क्या प्रधानता यहाँ की है। दूसरी बात यहाँ है कि हमारा कोई वेबसाइट नहीं है। नो वेबसाइट खोल के देख लीजिए। हम सैकड़ों पन्ने में आपको मिल जाएंगे, वो अलग बात है। आप ही दे देंगे हमारा स्पीच, गुरिंदर जी दे देंगे, तो हम कहाँ रोकेंगे बताइए। लेकिन हमारा वेबसाइट नहीं, लेकिन गूगल्स ने जरूर बना दिया। ये सुन लीजिए, गूगल्स ने खुद मेरा वेबसाइट बनाया। हमारा नहीं, 400-500 आदमी को वर्ल्ड में बनाया उसने। उसमें जब जाएंगे विकिपीडिया में मेरा नाम लिख देंगे, लेकिन सही नाम लिखिएगा। हमारा नाम सही लिखना भी जरा कठिन काम, लंबा चौड़ा नाम है ना, इंडियन नेम तो लंबा चौड़ा होता ही है ना। तो अगर सही लिख देंगे स्पेलिंग वगैरह में, देख लीजिए मेरा लाइफ स्केच आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तान की विशेषता की वजह से, भीष्म नारायण में कोई विशेषता नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि मुझको टेलीफोन आ गया स्टुटगार्ट से, डॉक्टर बत्रा तो ब्रिज है ही है ना, ये तो ब्रिज है बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। मोस्ट एक्टिव पर्सन, रिसेंटली इनके मिनिस्टर आए थे, उसको भी इन्होंने एड्रेस करवाया था मुझसे भी। मिनिस्टर ने तो बहुत अच्छा बोला ही बोला, इनके मिनिस्टर ने। सारे जगह इकोनॉमिक टाइज बढ़ रहे हैं जर्मनी से भी। तो वहाँ स्टुटगार्ट में बनता है मर्सिडीज बेंज। हमको कहाँ मर्सिडीज बेंज है? भारत की खूबी बता रहा हूँ आपको, दुनिया में ये खूबी कहीं नहीं मिलेगी। इसकी चर्चा करना इसलिए कि आप लोग इसको कोट कर सकते हैं बाहर में भी। मुझको कोई मर्सिडीज गाड़ी नहीं है। मेरे पास सेंट्रो सेकेंड हैंड पुराना मॉडल है, काफ़ी है मेरे लिए। और क्या गुरिंदर जी गाड़ी भेज दी, हम आ गए। देख लीजिए आपके पास ही है मर्सिडीज बेंज, लेकिन नहीं है, पूछिए इनसे, बैठे ही हैं, वहाँ भी उस मंच पर थे। टेलीफोन आया कि साहब मर्सिडीज बेंज 2007 की बात है, पावर वो नहीं। हमारे भाई मेजर साहब, आपको तो पहले भी आपको बताया सुना है मैंने, हम तो पावर में नहीं हैं। यहाँ पीपुल्स पावर सबसे ताकतवर है, जान लीजिए। आपको लोग प्यार करते रहेंगे, गुडविल रहेगा, सब पावर बना रहेगा। ये इंडिया की विशेषता है भारतवर्ष की। तो समझिए कि टेलीफोन आया कि साहब मर्सिडीज बेंज अपना न्यू ईयर मनाने जा रहा है, और न्यू ईयर में वो एशिया सर्किल उसको मनाएगा। उनका एशिया सर्किल कौन? मर्सिडीज बेंज का, उनका वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड है स्टुटगार्ट में। डॉक्टर बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं कि ये ना लगे कि कहीं बड़वर्गी तो नहीं कर रहा हूं। इंडिया की बड़वर्गी नहीं कर रहा हूं, इंडिया की हकीकत बता रहा हूं। अब देखिए वहाँ कॉन्फ्रेंस में था क्या? कॉन्फ्रेंस में था कि पूरा एशिया घूमते घूमते, चुके मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी के चिराग गुल हो गया कि आप हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है। इर्द गिर्द में मेरा ख्याल है कि दलवीर सिंह जी ने बताया है, सब एग्जाम्पल दिया। पाकिस्तान का किसका इर्द गिर्द सब जगह, बांग्लादेश का भी दे दिया। हालांकि अभी डेमोक्रेसी वहाँ भी है, तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम अभी डेमोक्रेसी, लेकिन कई बार चिराग गुल हुआ, बताया उन्होंने। कई श्रीलंका में भी गुल हो गया था एक बार, तो खैर यहाँ कभी नहीं गुल हुआ। ये रोशनी मामूली नहीं है। तो खैर तब उसके बाद उन लोगों ने चुना कि इंडिया से लेंगे आदमी, और पूछे उनसे कि उससे 1 साल पहले उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया था। कैसी संस्था हो सकती? हम तो कोई पद पर नहीं है। इंडिया की बात बता रहा हूँ, किस देश के हम वासी हैं देखिएगा। तो हमको आया कि साहब मुझे बोलना है किस सब्जेक्ट पर, जिस पर इन्होंने कहा है कि डाइवर्सिटी इतना दुनिया में नहीं है। ये भी दलबीर सिंह ने बोला। दलबीर सिंह जी ने बहुत सारा मेरा काम ही हल्का कर दिया है, खाली एग्जाम्पल दे दो वही काफी है। हकीकत है, कुछ जरा लाइटर वेन में भी दलबीर सिंह जी नहीं बात करेंगे तो अभी कुछ होना वाला क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलेगा, लंच भी आएगा, तो उसके पहले मूड काफी और इनलाइटन हमको करना है जन लोग को इनलाइटन मूड में। तो समझिए कि अब देखिए कि
सब्जेक्ट था द ग्रेट इंडियन हेरिटेज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। यही सब्जेक्ट था, जानिएगा, रिलीजियस टॉलरेंस। 7 से ज्यादा रिलीजन, बड़े बड़े रिलीजन 7 से भी ज्यादा इस देश में है। और ये भी लिखा हुआ था कि 3000 वर्ष, जिसको हम जाके वहां कट करके 5000 वर्ष अपने स्पीच में कर दिया था, 3000 वर्ष से भी ज्यादा से हम लोग उसको 3000 वर्ष से ज्यादा से भी हम लोग एक साथ रहते हैं। ये लिखा हुआ है चिट्ठी में, बता रहा हूं। वो जर्मन, वो इनका पूछिए ना उनसे, डॉक्टर बत्रा बताएंगे आपको। तो उसके बाद हमको वहां ये बता करके कहा गया कि इसी सब्जेक्ट पर बोलना है, वही कहा गया एकदम फोन करके, और खुश हुए कि हम एक्सेप्ट कर लिया। उनका इनविटेशन जाना ही था। ऐसा मौका कौन छोड़ेगा जहां भारत की महिमा की चर्चा करना हो, भारत के गौरव की चर्चा करना हो, कौन इंडियन प्राइड फील नहीं करेगा। तो हम गए वहां, लेकिन मेरा ड्रेस भी काम किया, सो सुन लीजिए। ये बताई डॉक्टर बत्रा है वहां की, वो जो मिसेज मिकी ओम, वही चेयरमैन थी, मिसेज मिकी ओम। तो उस बताई कि जो क्लिंच हुआ इशू, और बत्रा जी भी को भी जो अच्छा लगा कि हमारी गांधी टोपी, जवाहर जैकेट, धोती कुर्ता, ये चुस्त पैजामा, क्योंकि कहा कि यही आदमी ठीक कल्चर पर बोलेगा, इंडियन कल्चर पर। तो हम चीफ गेस्ट होकर चले गए, बताइए। जहां उससे पहले प्राइम मिनिस्टर, हम नहीं चले गए, हिंदुस्तान चला गया। हम क्या हैं, हम खुद समझते हैं हम क्या है। सब इस धोखा में नहीं है हम जरा भी। उस देश के हम लोग नागरिक हैं। आप लोग विदेशों में झंडा ऊंचा कर रहे हैं, यहां से हम लोग भी जा जाके झंडा ऊंचा कर दे रहे हैं। वहां बुला लिए गए और हम वहां गए, समझिए। और 40 मिनट्स का स्पीच मेरा हुआ वहां, जान लीजिए। और उसमें सारी चीज बचाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उसका ये है कि जब शिकागो से स्वामी विवेकानंद, उनका सेंचुरी बन रहा है आजकल इंडिया में, 150वां वर्ष, जब विवेकानंद जी लौटे शिकागो से, तो वहां प्रोफेसर मैक्स मुलर से मिल के आए। क्योंकि यूरोप में प्रोफेसर मैक्स मुलर ने, जो जर्मनी के फिलोसोफर थे, बड़े भारी विद्वान थे, उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में जो लिखा वहां और जो स्प्रेड किया, वो बड़ा भारी उनका देन है। और हमारा जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, उधर आप नहीं गए होंगे या जानते होंगे, उसके सामने का रोड मैक्स मुलर के नाम से है। तो मेरा फर्स्ट पार्ट तो मैक्स मुलर पर होना ही था ना। इतना प्रसन्न हुए लोग, इतना प्रसन्न हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। और शायद ही कोई डेलीगेट, 400 से कम लोग नहीं होंगे, अगर डॉक्टर बत्रा हमारे फिगर से सहमत हो तो। क्योंकि तो पूरा मंच में तो हमको भी वहां भी गांधी बना रहे थे ना, समझिए। वेलकम एड्रेस करने के लिए नहीं कर दिया सब। तो समझिए कि अब नतीजा ये है कि हमारा देश का वहां पे जो रुतबा रहा, शायद ही कोई डेलीगेट होगा जो मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाया। और मर्सिडीज बेंज सारी दुनिया में आप तो जानते ही हैं। दूसरी बात कि उन लोगों ने जो कहा उसका नटसेल यही है, जिसके साथ समाप्त करेंगे हम। धन्यवाद देके आप लोगों को कि पेशेंटली सुनते रहे। नटसेल है दलबीर सिंह जी, 3 ही बात कहा उन लोगों ने, जो मैंने उसका निचोड़ निकाला। कहा कि इंडिया तो 3 बात में भारी मशहूर है दुनिया में। वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। पहला आईटी, उस वक्त आईटी तो एकदम ही, वो तो यहां तक कि चाइनीज प्रीमियर भी आके बोला था यहाँ, उस वक्त का प्रीमियर चाइना का। और दूसरा ब्यूटी के बारे में भी बोला कि इंडियन ब्यूटी, 6 से ज्यादा वर्ल्ड कंपटीशन उस वक्त तक, जब हम गए थे 2007 तक, हमारी जो बेटियां थी वो टॉप की थी, समझिए कि ब्यूटी कंपटीशन में। वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, बोलो हम सब कह रहे हैं सब। आईटी, ब्यूटी एंड स्पिरिचुअलिटी, बड़ा जल्दी याद रहेगा आप लोगों को। हम स्पिरिचुअल कंट्री है। हमें जो कहना है, सारे स्पीच का पहले का सारांश है कि जो गैप है रिच एंड पुअर का, हमारे देश में नहीं चलेगा। क्योंकि हमको तो गरीब से गरीब आदमी को हम जनार्दन कहते हैं। जनता जनार्दन, दरिद्र नारायण, ये कंसेप्ट है आपका। सिर्फ वसुदेव कुटुंबकम कहने से काम नहीं चलेगा, आचरण में लाना होगा जहां भी आप हैं। और इस देश में भी आचरण में करना पड़ेगा कि हम अपने लिए भी सोचें, लेकिन अपने पड़ोसी के लिए भी सोचें, उसको भी आगे लेके जाएं। ये हमारा कर्तव्य बनता है। स्पिरिचुअलिज्म का ये माने, ये नहीं मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी बना देना, भौतिकवादी सोसाइटी बना देना, और अपने बहुमूल्य सभ्यता, संस्कृति और दूसरे के बारे में चिंतन, उसको हम खो रहे। उसको नहीं खोना है हम लोग को। बहुमूल्य समझिए दुनिया में नहीं। ये वहां 400 डेलीगेट्स पे कहा इंडिया इज ए स्पिरिचुअल कंट्री। अब अभी देखिए दुनिया में कोई मिसाल है? कुंभ मेला, करोड़ों लोग स्नान करेंगे। बताइए तो किसको निमंत्रण दिया था इलाहाबाद वालों ने कि हमारे यहाँ आके गंगा में स्नान कीजिए, गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर?
ये देश आपका है, गर्व करना है इस पर, और अपनी संस्कृति, संस्कार, अपनी इकोनॉमी और आपका कंट्रीब्यूशन ये ऑलरेडी का अपील कर चुके हैं। चाइना में तो फैक्ट यही न है कि उनके लोग ज़्यादा उद्योग में हैं, दे आर इन बिजनेस, वो आके अपने कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे एक एग्जाम्पल यहाँ भी है, 2 एग्जाम्पल पंजाब का और गुजरात का, और जगह का भी है, लेकिन ज़्यादा है गुजरात के लोग ही इन्वेस्ट करते हैं आके गुजरात में। ऐसे सिर्फ गुजरात सरकार ही का देन नहीं है, और पंजाब में भी वही हाल है, और जगहों में है, लेकिन उस मात्रा में नहीं है। तो आप लोग जरा दिल खोल के इन्वेस्ट कीजिए। इंडिया का फ्यूचर तो ब्राइट है, रहेगा। 2020 में यू विल बी द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक पावर, दिस इज द ट्रुथ। इन्हीं शब्दों के साथ जाएंगे। Thank you very much indeed, Dr. Bishnarayan Singh there with the most wonderful address. Ladies and gentlemen, we're extremely privileged to have amongst us a very humble and a very modest man, but he is one of the most powerful people in the United Kingdom. Mr. Gohar Nawab, he is the international president of the NRI Welfare Society of India. He is chairman of the Eurogroup of hotels, and they own about 70 hotels in London itself. This man is self-made, and he is still such a wonderful human being. He's such a wonderful soul, and he's always willing to help. He's done so much of philanthropic activity, always helping non-resident Indians and Asians across the world. Ladies and gentlemen, I don't think I will do justice to saying anything more about him, because you'll see for yourself when you hear him speak. I present to you Mr. Gohar Nawab. Thank you. Well, I'm here, first of all, to thank all of my colleagues who have come to welcome you. You have come from different countries. You have been through very, very bad time, but still you are here. Thank you very, very much. I know the tiredness, because I was tired myself yesterday. So I welcome all of you. And I would say why I'm here is because of Dr. Sardar Harbhajan Singh. I did not come to India for last more than 15 years. I met him in Dubai, and he asked me to come here, and I have opened here a health center for the working class people. It is all free, provided from my company. Now, I have never written anything before. This is the first time, because I saw everybody writing some notes. So I have written some notes here as well. So I would like to tell everyone about the life of NRI. People think we go to Europe, America, Australia, New Zealand, and there's a gold mine and we bring the money. It's not the case. We have to work very, very hard. I give you example of myself. My first job was, I went there to do bar at law to be a barrister. But unfortunately, there was a war between India and China. I could not get my money, so my first job was as a cleaner. And as a cleaner, I got the sack first day, because I was very strong. I did not know how to clean. When I was cleaning the window, I smashed the window, and I got the sack. The second job was as a baker. I worked there for at least 18 months. One day I was going to my college. This is the culture of England. Believe me, they are good people. One of my chairmen saw me, and he came to me and said, "Where are you going?" I said, "I'm going to my college." "What are you doing?" I said, "I'm doing ICS." "Oh, good, you're doing studies?" I said, "Yes, sir." "They come and see me tomorrow." The next day he called all the managers and told them he's a student. We must help him. And then they all gave me the overtime. My name changed from Mr. Nawab to Mr. Overtime. I used to do every day 12 hours. And within a matter of 18 months, I saved enough money. I came to London and I completed my education. But that education was not law. That was not bar. That was ICS, which is Institute of Chartered Shipbrokers. I worked in the distillers company for 3 years. But my background was business
My father was a businessman. He was a diamond merchant. So I started the hotel business. This started in 1970. I learned the building trade, the bricklaying, the plastering, because my master, my banker said to me, every Indian coming here is the son of a Nawab or son of a Raja. I'm sorry, if you want the money, you have to learn the trade. I went home. I thought, he's not asking for any money. He's asking me to learn. So I learned the trade, which is bricklaying, plastering, heating, and I started the work. I made the first £1 million in 1974, and then I carried on working. I have a wife who works with me. Unfortunately, she is not here. She had a brain hemorrhage, but with the blessing of God, she has improved. अब हमारी ख्वाहिश होगी आप लोगों की इजाज़त से कि हम अपनी ज़बान में बात करें। अगर आप इजाज़त दें तो हम उर्दू में बोलें, क्योंकि इंग्लैंड में रहते हैं, सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, फॉक नाइफ से खाते हैं, ऐसा मौका नहीं मिलता है कि हम अपनी ज़बान में बात करें। आप लोग इजाज़त देते हैं? थैंक यू। ऐसा हुआ कि 1960 में पंडित नेहरू हमारी यूनिवर्सिटी में आए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने अंग्रेज़ी में स्पीच देना शुरू की। एकदम से कहने लगी, देखिए मैं पागल हो गया हूँ। उनके साथ में अंग्रेज़ भी थे, जर्मन भी थे, और मुख्तलिफ लोग थे। उन्होंने कहा, डू यू बिलीव दिस इज़ द प्लेस वेयर द उर्दू लैंग्वेज वॉज बॉर्न, विच इज़ माई मदर टंग। कहने लगे, मैं किस ज़बान से माफ़ी मांगूँ आपसे, मैं यहाँ आ करके अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब हम लोग आज़ाद हैं, और आज़ादी के माने सिर्फ ये हैं कि खुदा के लिए आपस में झगड़ा ना करें। आज़ादी के माने ये नहीं है कि आप अपने कमरे से कूड़ा फेंकें। आज़ादी के माने ये नहीं है कि घर के बाहर आप गंदगी करें। आज़ादी के माने है मोहब्बत, मेल और मोहब्बत। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। हम तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं, क्यों निकल कर बाहर गए? मजबूरी के तहत। कोई शख्स खुशी से नहीं गया है। क्या किसी को तालीम की मजबूरी थी, किसी को पैसे की मजबूरी थी, किसी को कल्चर की मजबूरी थी। बहरहाल हम लोग पहुँच गए बाहर यहाँ से, और जाने के बाद देखा हमने कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की के चांसेस हैं। ख़ास तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अमेरिका भी गया, स्विट्ज़रलैंड भी गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, सीरिया भी गया, इराक़ भी गया, लेकिन जो मुझको इंग्लैंड के अंदर आसानियाँ पेश आईं वो मुझे कहीं नहीं पेश आईं। और वहाँ पर रहने के बाद ये ज़रूरी थी चीज़ कि आप हासिल करें। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि तरक्की का रास्ता क्या है। तरक्की के लिए 3 चीज़ें होना चाहिए। तालीम इज़ नंबर 1। बग़ैर एजुकेशन की दुनिया में इंसान कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 3 जो खुद ब खुद पैदा होता है उसे कहते हैं टैलेंट। तो अगर आप देखें इस चीज़ को कि किस चीज़ में तरक्की का रास्ता है, और मैं आप सबसे वादा करता हूँ, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप प्रोफेसर हों, चाहे आप लेक्चरर हों, चाहे आप कुछ भी करते हों, लेकिन दुनिया में हैप्पीनेस के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। माया देवी के जिस किसी ने दर्शन किए, माया देवी उसको हमेशा खुश रखती हैं। और माया देवी का दर्शन करने का मकसद ये हार्ड वर्क। इंसान के अंदर कभी गुरूर नहीं होना चाहिए, कभी तमकनत नहीं होना चाहिए। मेहनत एक वो चीज़ है इंसान को तंदुरुस्त रखती है। मेहनत वो चीज़ है इंसान को आगे बढ़ाती है। मेहनत वो चीज़ है कि रास्ता दिखाती है। अब यह है कि किस किस्म की मेहनत की जाए। एक किसी वो शख्स जो कि क्लीनर हो, वो शख्स जो बेकर हो, वो शख्स जो लखनऊ का रहने वाला हो। लखनऊ किसे कहते हैं? पढ़ोगे लिखोगे होगे ख़राब, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। जहाँ का ये मैसेज हो, पढ़ाई लिखाई आराम से, खाना पीना, पढ़ना लिखना बहुत कम, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इंसान खुद ब खुद आगे बढ़ता है। और ये NRI का मकसद ये जो सरदार हरभजन सिंह ने किया है, यकीन करें ये बहुत ही मिरेकल किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है। इनके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, एक बेटी है और इनकी बेगम है, जिनका कहते हो निहार बिरवान के चिकने चिकने पात। ये इन बच्चे जो हैं ये बहुत जफाकश बच्चे हैं, बहुत मेहनती हैं, और इनकी पूरी पूरी कोशिश है कि अपने बाप के कदम पे कदम रखें और उनसे आगे बढ़ें, जो कि मेरी भी पूरी दुआ है कि परवरदिगार इनको कामयाब करें इनकी ज़िंदगी में। अब यहाँ पर मैं चीज़ें और कुछ आपको बताना चाहूँगा कि ये टूरिज़्म के माने क्या हैं। अभी हमारी मिनिस्टर टूरिज़्म गई, इंडियन हाई कमीशन में सब बिजनेसमैन को बुलाया गया, मैं भी गया। वो
उन्होंने पहले सबसे शुरू किया इनक्रेडिबल इंडिया, और कहने लगे कि मेरे इतने होटल हैं और उसमें जगह नहीं है। और मैंने अपना हाथ उठाया कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो जब मेरा टर्न आया मैंने कहा कि मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, मैं प्राउड हूँ कि मैं इंडियन हूँ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट इज़ डूइंग नथिंग फॉर द वर्किंग क्लास पर्सन। इफ़ यू गो टू बॉम्बे, दिल्ली, Calcutta, there are only 5-star hotels. There are not 2-star hotels at all. In London, the government is helping us to open more and more tourist hotels. I have got big number of rooms. I'm full every night. I don't have one room vacant because I have a department there, the transportation. If one hotel is full, we put them in a coach, take to the other hotel and the other hotel. Now, दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि होटल के माने क्या है। होटल के सबसे पहले तहजीब क्या है? अच्छी ज़बान, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। दूसरी चीज़ ये है खुश पोशाक, सफ़ेद शर्ट, ब्लू सूट, ताकि जो शख्स देखे कि ये शख्स है एक तहजीब याफ्ता है। हमारे यहाँ का जो स्टाफ है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सफ़ेद शर्ट पहने, ये ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी में बात करें। मुसीबत ये है कि जो हमारे कहते हैं उर्दू में खूब निपटेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। जब इंडियंस एक जगह काम करते हैं तो वो ज़बान अपनी बोलते हैं। अंग्रेज़ शिकायत करते हैं कि जब उनके काउंटर पर जाओ तो ये लोग जो हैं इंडियन में बात करते हैं। तो मुझको एडवाइस दी गई कि डोंट कीप ओनली इंडियंस, मिक्स इट, सम जर्मन, सम इंग्लिश, सम इटालियन, सम स्पेनिश, एंड दिस इज़ व्हाट वी डू। तो पहली चीज़ ये है। फिर उसके बाद आता है कि एक किसी शख्स को आप सर्व कर रहे हैं तो सर्व करना भी बहुत एक आर्ट होता है। अब जा करके आप ग्लास यूँ रख दें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर रखें तो उसको इस तरह से रखें कि आवाज़ ना हो। उससे पूछे कस्टमर से आपको क्या चाहिए, ये क्या चीज़ें हैं। इसको कहते हैं तहजीब हिंदुस्तान, तहजीब लखनऊ। कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप किसी से अखलाक से पूछें। अगर आप उससे कह दें पेट तो आपको भरा होगा, आपको खाने की क्या ज़रूरत है कि आप खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, ऐसा ना कहें। आप तशरीफ़ लाइए, बैठें, खाना खाइए। ये है होटल बिज़नेस। इस वक्त मेरे ख्याल में अगर आप जाएं, हर दुनिया का मुल्क कोशिश कर रहा है टूरिज़्म में जाने के लिए। टूरिज़्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट business. Tourism is one of the best subject for every government, whether you go to France, Germany, Italy, Sweden, anywhere. Same thing in America, they are going. The French are the leaders in this business, which is only 2-star. They are opening, they have more than 4,500 hotels, and we have also signed a contract with them to go with them. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के ऊपर ये जो चीज़ें हैं, जो तकलीफ़दें हैं, वो ये हैं कि जब कभी आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं। मुझे बड़ा एक तरह से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हिंदुस्तान के हर शहर में एक कम से कम 10-10 होटल खोलूँ। सबके पहले मैंने लखनऊ में जाके ऑक्शन में प्लाट्स ख़रीदे, लेकिन कामयाबी ना हुई। हर तरफ परेशानियाँ। तो मैंने यही सोचा कि ये बेहतर बिज़नेस यहाँ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ की आदतें, यहाँ की जो चीज़ें हैं हमारी तरह से नहीं है जैसे कि हमारे मुल्क में है जहाँ से हम रहते हैं। ये ज़रूरी है कि हमारा मुल्क असली तो हिंदुस्तान है, लेकिन यहाँ के अंदर चेंजेस आने में टाइम हो रही है। हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनका फ़र्ज़ है कि कोशिश करें कि जो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको फैसिलिटीज़ दें ताकि वो आगे अपना पैसा यहाँ लगाएं। क्योंकि हमारा कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता हो हमारा इंग्लैंड से, हमारी बीवी भी हिंदुस्तान की, हमारे बच्चे भी यहीं के हैं। लिहाजा हमें तो सिर्फ इसलिए हम वहाँ पर हैं कि हमें एक आज़ादी है कि हम वहाँ बिज़नेस कर सकते हैं। अच्छा, अब आके बैठती है बात के अच्छे और बुरे की। हर मुल्क में अच्छे बुरे होते हैं, आप चाहे फ्रांस जाएँ, जर्मनी जाएँ, इटली जाएँ, कहीं। लेकिन इंग्लैंड के अंदर जो अच्छे लोग हैं वो ज़्यादा हैं, कलर बार बहुत कम है, परेशानियाँ कम हैं। अगर आप जाकर, मैं एक कह सकता हूँ विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड आई एम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई डील विद द इंग्लिश बैंक्स एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल। तो ये इस बिना पर मुझे वहाँ जाना पड़ा और इसलिए मैं वहाँ हूँ। और आप लोगों से सबसे मेरी ये पूरी ख्वाहिश है कि कभी भी अगर आपको कोई ज़रूरत हो किसी किस्म की तो आप हमें कांटेक्ट हमसे करें और हम जो भी मदद कर सकते हैं करेंगे।
और ये NRI का फंक्शन जो है, जो NRI हम लोग हैं, हम लोगों का सिर्फ ये मैसेज है कि हम लोग मिलें जुलें एक दूसरे से एक्सचेंज करें, और हमारा वतन जो है हिंदुस्तान, इसके अंदर। और दूसरी चीज़, अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, कहते हैं हमें दूसरे से क्या मतलब, जहाँ कहे खाक टूटे। मैं आपने छोटी सी इंफॉर्मेशन दी, मैं आपको बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे लंदन से स्टाफ के लोग गए पाकिस्तान, 1 से 12 आदमी मार दिए गए, 100 आदमी का आज तक पता नहीं। वो मुल्क नहीं है बल्कि वो जंगल है, वहाँ किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम मुकाबला कर सकें या उसकी मिसाल दे सकें। हमारा वतन मुख्तलिफ वतन है। हमारा वतन क्या है? हिंदुस्तान है, जहाँ के अवध था, जहाँ के अभी की बात है कि जब हुकूमत थी नवाबों की, तो मिस्टर सिंह जो कि वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने हमें, उनके बच्चों को हमने लंदन में रखा था, तो उन्होंने हमको बुलाया और कहा कि नवाब साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि नवाबों ने जब कभी पैसा बांटा तो हिंदू मुसलमानों को बराबर से दिया। जब ईद आती थी तो उतना ही पैसा, और जब दिवाली आती थी तो उतना ही पैसा। ये कथक डांस जो आज जिंदा है, उसके बानी नवाब लोग हैं। तो कहने का मकसद ये कि मिलजुल के रहने से सब कुछ होता है। हमारा हिंदुस्तान का मज़हब एक है, हम लोग ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं और हमको हमेशा रहना चाहिए। और इंशाअल्लाह हमारा खुदा ने चाहा, ये हमारी दुआ है कि हम लोग हमेशा इस तरह से रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारे पंडित जी ने जो कुछ भी किया है उनको ऊपर क्रेडिट जाता है। जो पंडित जी ने किया है, मैं आपसे बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्हीं ने सबसे पहले यूरोप कंट्रीज से, अमेरिका से मांगा था कि हमको एजुकेशन चाहिए। सबसे बड़ा जो हमारे लखनऊ में हॉस्पिटल वर्ल्ड का है वो रशिया ने बनाया। और इसके अलावा जो जितनी भी आज तरक्की इंडिया कर रहा है उसके बानी पंडित जी थे। ये तो सभी ने की, क्योंकि जो वतन का बशर है, इंसान है, उसकी कोशिश थी कि हिंदुस्तान तरक्की करे। जो आज हमारा दुनिया में नाम है वो सिर्फ एजुकेशन से। अगर आप जाएं कभी लंदन एयरपोर्ट पर और प्लेन देखें तो आप पाइएगा 50% आर इंडियंस। They are either coming from USA, from Canada, from different countries, but they are Indians. Our population is in every country. और जब कभी हम होटल के राउंड पे जाते हैं, अगर कभी हम देखते हैं अपने इंडियन को, तो हम जाकर उससे वेलकम करते हैं, तो शेक हैंड करते हैं और यही कहते हैं कि कभी भी आपको ज़रूरत हो आप हमें बताइए। और हमारे यहाँ काफ़ी लोग आते रहते हैं। और यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मोहब्बत हमारा पैगाम है हिंदुस्तान का, और उसमें साथ साथ ये है कि मिलजुल कर रहिए, आपस में एक दूसरे की मदद कीजिए, और ये देखिए कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि बिजनेस 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 शुड बी इन योर माइंड। बिजनेस विल ब्रिंग यू ऑन द टॉप। अगर आप पास पैसा है तो दुनिया का हर काम कर सकते हैं। नौकरी इज़ नौकरी है, नौकरी चाहे आपको 20,000 की हो, 50,000 की हो, लेकिन कोशिश करें हर फील्ड के अंदर बिजनेस लाने की। बिजनेस आने के बाद आपको दुनिया की किसी चीज़ की फिक्र नहीं होगी, आप जो चाहे कर सकते हैं। ये मेरा पैगाम है, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग आराम से यहाँ पर रहें जब तक हैं, और कोई भी चीज़ हो आप हमें बताएं, और हम इंशाल्लाह आपके मुल्कों में भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Such a wonderful speech made by Mr. Gohar Nawab, and I think what I said about him was hardly enough. Thank you extremely, Mr. Gohar Nawab. Ladies and gentlemen, we now come to the end of the inaugural session, but now comes the most important part where we have an interactive session, and we have these two lovely ladies on both sides of the hall. So we'll break now into the open house session. For the open house session, I have the distinguished privilege of asking Dr. Nitish Sengupta to chair this session. He is a former member of Parliament of the Lok Sabha, the Chairman Board of Reconstruction of Public Sector Enterprises with the status of Union Minister of State with the Government of India. And of course, I have known Dr. Sengupta from the time he was the erstwhile Petroleum Secretary, and it's always a pleasure to see him on stage. I'm sure he'll do full justice to chairing the open house session. You'll find him a wonderful chairman. What I would like you to do, ladies and gentlemen, is to put your questions on slips. First of all, put your name, the country from where you are, and the question, please. Make them short, and these lovely hostesses will come up to the chairman, and then the chairman will take the session, and I hope you'll have lively interaction. So this is the most important session, ladies and gentlemen, which is the open house,
And I'll request the dignitaries to kindly move off the stage and Dr. Sengupta to chair this session. Thank you very much, ladies and gentlemen. We slip straight into the open house session from now. Are you leaving, sir? No, I will be Hello. As there is not much time, please kindly send your names as soon as possible so that we can listen to your problems, grievances, and give you a positive answer. Mr. Neeraj Jain, you also come on the stage, please. Rita ji, you were saying something yesterday, so why don't you be the first one to start speaking? Please. Rita ji from LA. Well, since the time is short, I pay my kindest regard to the very well dignitaries, my prestigious NRI committee, my co-workers, and my everybody who's come as a wholesome from all the world to make it one unity. My respected Gurinder Singh ji, I have a question, and I thought all the questions have been answered and covered very nicely. Two things I felt living in abroad. I'm a physician and an educator and a researcher in the field of medicine. Sometimes the medical students bring me the answers and the questions. If we can do the telemedicine, so the students which are coming from here, we can educate them on the terms of the medicine, what is needed. India was known to be very proud for its diagnostic criteria as a clinician. But we are moving towards the more Western world where we are taking advantage from the MRI and CAT scan and not diagnosing and listening to the history. UCLA hired me to teach those students over there for the backward so we can teach the Indian way. But in India, I have a question, and whenever I come here for the meetings, I look at it, students do not perceive the right kind of the history. So I suggest if there could be a foreign exchange of the students who can visit from here and there, that's one. Second is question I want to bring upon the foodborne diseases, waterborne diseases, so purification. Third is very much needed is migratory labor. When the world is moving towards the industrialization, as much as it's happening in India, we need to have the shelter of those people when they build the big empire state buildings here where they can be plotted and they can be shared in the nice cottages so the communicable diseases can be prevented. Fourth, in short, I would say a media. Which media are we talking about? A media who brings the Indian community down, or a media which brings our prestige down by the showing the entertainment movies, something like a Slumdog Millionaire. I felt very bad after seeing that movie, so I see some Hollywood patients. So I called the director. I said, you know what? You made a movie about Slumdog Millionaire. In our country, nobody calls a slum person as a dog, number one. It's a victorious country, and if you have to make a movie, make India look like a victorious nation. So next day, the preponderance gone to National Geographic. Producer was in my office, and he said, which site should I take it? And I say, please go to Chandanpur village, Orissa, and all those things. In short, what I would like to say, the media has a biggest role to image and put an image of our country outside and inside both ways. So I would. Third thing, we all are one. I mean, it's been said again and again, when we are one, we project the image one. Spirituality and heritage are our dominant, and we have to preserve that as standing outside, and each one of us are doing that criteria, but I'm not sure which more guidance we can do about that. And that's what my request is. Thank you very much. Thank you very much.
about diagnostics and medical tourism. Let me inform you, we come a very, very long way, and I can tell you proudly, we have huge amount of people from Central Asia, coming from South Asia, and we have one of the finest medical facilities available today. We have Fortis Group, we have Max Healthcare, we have Metro, we have Apollo, we have one of the finest hospitals in the private sector. In the private sector, of course, in the government the focus is very different because the issue with healthcare at an affordable rates. But in the private sector, we have promoted medical tourism over the years. And let me also tell you very proudly, we have one of the finest diagnostic labs in India. Of course, if you talk of states and you talk of rural areas, there are not many labs which are certified, which are very labs which are not up to the mark. But then again, the same problem is we have huge challenge in public health. We have to cater to huge amount of population. And let me tell you, 1.25 billion people, and one of our greatest successes in the recent time, which is almost historical. India today is polio-free country. There is no polio in India. And reaching for polio vaccination all over the country was not easy. We done that. We cured leprosy once and for all. We've been able to control HIV. And medical tourism we are promoting. And in fact, I attended a function the other day. There's a company in Mahajan Diagnostics in India. That fellow is a highly decorated doctor. He's got Padma Bhushan. And he's brought in a cardiac scan machine, which is probably the 5th machine in the world. We are 5th country in the world to have that machine. The GE supplied us that equipment. We have one of the finest equipment. But the question is, it is at the moment available to people who can possibly afford to pay. So there are huge strides in medical tourism that are taking place in India. Thank you. My only question was about this one. As in the medical colleges, when we teach, we still have to teach them not only basis of the CAT scan and the MRI. Our old Indian medicine is the gold mine. And so we have to preserve that. That's one area which I would require to be, I don't know how to communicate in my medical colleges. That's one area, and it's supposed to be that way. That second is about the blood-borne diseases, because this has brought some questions into the lining. And when we investigate these things, I think estimation of those diseases far beyond that would convert into the thousands and thousands of hepatitis C, B, and what are we doing for that? I know every measure has been taken, so I think the education system on the general public is more required on that. Medical colleges are doing, general public is doing, but more of the low social